audible, ma'am? Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Ma'am, Okay. welcome to our virtual stage, and please continue, ma'am. Thank you so much, sir. Should we wait for more participants to join or should we start? Ma'am, you can start now. They are joining. Okay. Hello, students. How many of you have appeared in this exam earlier? Yes, ma'am. Okay. I think there is an option to raise hands. So if you have appeared in this exam earlier, you can raise hands. Okay. There are a good number of students who have appeared in. So they were 31 students. They have appeared. And rest all, okay. Others, they are first timers. I will be sharing my screen with you. Is it visible now? Yes, ma'am. I so should we start? Yes, ma'am. Please start. Hi everyone, I am Harpreet Kaur, author of this Oxford and NTA UGC Net Paper 1 book. You must have, some of you might be knowing about this book. If you have prepared for this exam, then you must have came across this book. And today we are going to discuss about the different. Today we are going to discuss about some strategy tips and tricks regarding which with which you can crack paper 1. So let us begin this session with a quote by Dr. APJ Abdul Kalam that teaching is a noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. तो आप जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन बिकमिंग अ टीचर इन सो इसी ऐसे ही इसको टीचिंग के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन जो हमारे करेक्टर को कैलिबर को फ्यूचर को जो है वो शेप करती है तो और आप भी ऐसे ही एक अच्छे टीचर बनना जो किसी स्टूडेंट के करेक्टर को कैलिबर को फ्यूचर को शेप कर सको एंड द स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स दे विल बी रिमेम्बरिंग यू एज अ big as a good teacher and that will be a biggest honor for everyone. Now let us start with what is NTA UGC NET exam. So NTA is a national testing agency which conducts different exams. One of these is UGC NET exam. This exam is conducted for determining the eligibility for assistant professor and junior research fellowship in Indian universities and colleges. So now the exam is conducted in computer based mode and computer based mode में जो exam है वो start हुआ था December 2018 में. Sir, I have a question. Are students comfortable in English or in Hindi? Ma'am, they are little Should I comfortable in continue? Hindi. हिंदी में मैम हिंदी में हिंदी मैम इन हिंदी में Okay, हिंदी Hindi. Okay. I will continue with I will continue with a mix of both Hindi and English.
it will be कोई better. ऐसा तो नहीं है ना जिसको हिंदी समझ में नहीं आएगी? मैम हिंदी सभी समझते हैं, आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं. श्योर सर. So जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था दैट वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 2018 और जो नेट का पेपर है इट इज फॉर डिटर्मिनिंग. इससे हम एज जो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लगना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास नेट का क्वालिफाई होना, नेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है. प्लस अगर आप JRF की कहीं भी PhD के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको UGC नेट का एग्जाम के थ्रू ही आप जा सकते हो. और इसके लिए फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जो दिस होल सेशन विल बी इन फॉर्म, ये पूरा सेशन जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं उनके बेसिस पे है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स जो है जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके पास 55 डिग्री मिनिमम जो है मास्टर डिग्री में मार्क्स होने चाहिए 55%. OBC और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% है, ट्रांसजेंडर के लिए भी 50% है. और अगर किसी के पास PhD डिग्री है जो 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट हो चुकी थी तो उनको भी 50% मार्क्स चाहिए. और एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. नेक्स्ट इज देयर एनी एज लिमिट फॉर अपीयरिंग? आप देख सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है बट JRF के लिए ज्वाइन करने के लिए 31 ईयर्स की एज लिमिट है. और जो JRF की अवार्ड लेटर होती है दैट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स. तो दैट मीन्स कि अगर आपने JRF ज्वाइन करना है तो यू नीड टू ज्वाइन बिफोर द एज ऑफ 31 ईयर्स. और कुछ एज रिलैक्सेशन भी है. आर देयर एनी रिलैक्सेशन? यस देयर आर. For reserved category candidates, female applicants, there is an age relaxation of 5 years. इसके अलावा जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनके लिए भी जितनी उनकी रिसर्च का ड्यूरेशन होगा उतनी देर का उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है. मैक्सिमम जो है इट विल बी 5 years. अगर किसी के पास LLM डिग्री है तो उनको भी 3 years की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है. और अगर किसी ने आर्म्ड फोर्सेस में जो है सर्विस की हुई है तो उनको भी मैक्सिमम 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्विस ड्यूरेशन. और सारे जो है डिफरेंट ये रिलैक्सेशन है इन सबको कंबाइन करके टोटल रिलैक्सेशन जो है इट कैन नॉट बी मोर देन 5 years. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम? इस पेपर में यहाँ पे 2 पेपर्स हैं. फर्स्ट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है इट इज कॉमन फॉर एवरीवन और पेपर 2 है इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट ऑफ मास्टर डिग्री. तो आपके मास्टर डिग्री में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था उस बेसिस पे पेपर 2 आएगा. और पेपर 1 जो है इट विल बी ऑन पेपर 1 जो है इट इज कॉमन फॉर एवरीवन. और पेपर 1 में जो है जनरल क्वेश्चंस होंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड. और बाकी जो है इसके 100 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे. पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का है. और इन दोनों को कंबाइंड ड्यूरेशन पहले अलग अलग होते थे, अभी कंबाइंड ड्यूरेशन जो है इट इज 3 आवर्स. और इसमें पेपर 1 में जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपके टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का सिलेबस. कोई क्वेरी है अगर आपकी अभी तक यहाँ की तो आप पूछ सकते हो. यू कैन सेंड कमेंट. When will be the exam conducted? तो अभी जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा. डेट्स अनाउंस हो जाएंगी. और अभी मेन क्वेश्चन है कि एग्जाम को क्वालिफाई कौन करता है. तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक तो ये इनका सिस्टम है, मेरिट लिस्ट बनती है एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों की. जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की जनरल कैटेगरी की लिस्ट अलग होगी, बैकवर्ड की अलग होगी, SC की अलग होगी, ऐसे सारे जो है फिजिकली जो हैंडीकैप है उनकी अलग होगी. तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है. तो अगर आप मेरिट लिस्ट का पार्ट होने के लिए जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है ही नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%. दैट मीन्स जो अभी हमने देखा कि एग्जाम में टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम है तो एग्जाम का 300 का 40% फॉर जनरल कैटेगरी और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%. अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप मेरिट लिस्ट का जो आपके सब्जेक्ट की आपकी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट होगी आप उसका पार्ट बनोगे. अगर आप इससे कम स्कोर करते हो तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेरिट लिस्ट. और फिर उस मेरिट लिस्ट में से क्या होगा,
टॉप 6% आपके सब्जेक्ट, टॉप 6% कौन सा होगा ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम विल क्वालिफाई। जैसे आपके सपोज अगर आपके कैटेगरी के और आपके सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के से जनरल कैटेगरी के 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो उसका 6% जो है मेरिट लिस्ट में से वो 6% निकाल लेंगे 1000 का, और वो जितना भी नंबर आएगा वो टॉप जो होंगे स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में, उनको फिर दे विल से दैट दे हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम। अब उसका 6% में से भी कुछ आगे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे JRF होगा। तो अगर आप ये नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो, दैट मीन्स आप अपनी कैटेगरी के, अपने सब्जेक्ट के टॉप 6% में हो। Then next is how to prepare for paper 1. तो now अभी हम इसको start करने से पहले I need to ask you people that if you have any question regarding what we have discussed till now, you can ask. Then we will continue with how to prepare for paper 1. If anyone has any doubt regarding the basic pattern of exam, we can discuss. Then we will continue with the tips and tricks for paper 1. Okay, then we will continue with paper our next topic, which is how to. Do you have any doubt? Okay, then how to prepare for paper 1. First thing what you need to do is you need to understand the syllabus. अगर आपने ये बुक को देखा है, ऑक्सफोर्ड की जो बुक आ रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बुक के बिगिनिंग में प्लस हर चैप्टर के बिगिनिंग में सिलेबस गिवन है। ये है उस सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट है बुक में से। तो यूनिट 1 में है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होंगे दे आर रिलेटेड टू टीचिंग, कांसेप्ट्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, देन लेवल्स ऑफ टीचिंग। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। और इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक बड़े अच्छे टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाता है तीनों में। बाकी है लर्नर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग and methods of teaching. It is a very important topic, teacher centered and learner centered methods. पहले क्या होता था कि जैसे अभी भी हम it is getting teacher centered, जब भी जो हम बात कर रहे हैं it is getting teacher centered because I am speaking and you all are listening. So you all will be having different backgrounds, आपके different queries होंगे, सब कुछ है अलग से अलग अलग होगा, but फिर भी but you all are listening to what I am saying. इट इज टीचर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा कि टीचर हर एक लर्नर के हिसाब से, उसकी जो जरूरत है उस हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। टीचर सेंटर्ड में जैसे हो जाता है ना, लाइक वी से वन साइज फिट्स ऑल, तो टीचर सेंटर्ड में वो अप्रोच रहती है। लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट की पर्सनल जो उनकी नीड्स हैं उन हिसाब से ही उनसे उनको पढ़ाया जाता है। देन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स भी हैं। इन टॉपिक्स स्वयं स्वयं प्रभा, इन पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे टीचिंग एड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम पे क्वेश्चंस होते हैं। देन रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे एक क्वेश्चन पक्का होता है। देन ये जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है इनके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, इनकी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनमें। और ये सब कुछ हमने बुक में दिया हुआ है डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में, कि आपको याद करना, समझना आसान हो, याद रहेगा। फिर सिंथेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, इसमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च को जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रिसर्च में आईसीटी को, जो कंप्यूटर्स को हम रिसर्च में, इंटरनेट को, नेट, ये सब मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको रिसर्च में कैसे यूज करते हैं, और रिसर्च के क्या एथिक्स हैं, जैसे कि कहीं से कॉपी नहीं करना, प्लेजराइज ना हो, जो आपने डेटा कलेक्ट करे हो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं रिसर्च एथिक्स। देन कॉम्प्रीहेंशन होता है, आपको पता है एक पैसेज होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Do you know the difference between verbal and non-verbal? मैम वर्बल कम्युनिकेशन इज जो होता है कि क्या कि आप हर मतलब लैंग्वेज में प्रकाश करना, और जो हमारा एक्टिविटीज होता है वो एक्टिविटीज जो लैंग्वेज नहीं यूज करता है वो होता है नॉन वर्बल। लेकिन वो Yes, verbal दूसरा है। आदमी होता है
और समझ जाता है मेरा एक्टिविटीज देखकर वो क्या पूछना और क्या बताना चाहता है। वर्बल इज कि जैसे आपने बोला, वर्बल जो है उसमें लैंग्वेज का यूज होगा, कुछ बोल के, या कुछ वर्बल जो है इट कैन बी ओरल कि हम कुछ बोल के बात कर रहे हैं, इट कैन बी रिटन ऑल्सो। तो ये होता है वर्बल जिसमें लैंग्वेज यूज हो रही है। इट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। बट जो है नॉन वर्बल है उसमें जैसे कि हम कुछ जेस्चर्स करते हैं, कोई इशारे कई, जैसे एक सिंपल सी चीज है दैट मीन्स बाय बाय। तो इन सब जो हमारे जेस्चर्स हैं, जैसे कि हम हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन वर्बल में आएंगी। एक ही चीज को, जैसे कि एक ही सेंटेंस को अगर हम अलग अलग टोन्स में बोल के देखें तो उसका मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेम चीज है, सेम चीज जो है वो होती है कि जो कम्युनिकेशन में ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। सो हमारा सिर्फ वर्बल जो कम्युनिकेशन, जो चीज हम बोल रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। तो सेम चीज अगर जैसे प्यार से भी बोल सकते हो, गुस्से से भी बोल सकते हो, तो ये सब चीजें हैं। तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। नेक्स्ट जो है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अभी कई बार क्या होता है कि हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ और कहने की कोशिश की, बट जब दूसरे बंदे ने वो चीज को समझा तो उसने उसका मीनिंग एज सच पूरा ठीक से जो हमने कन्वे किया था वो नहीं उनके पास, उन्होंने वही नहीं समझा। तो उसका रीजन क्या होता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं। कई बार लैंग्वेज के रिलेटेड हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड हो सकता है, फिर साइकोलॉजिकली होते हैं, सिमेंटिक होते हैं, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं। Then a very interesting topic, which is my favorite, it is mathematical reasoning and aptitude. एंड इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपको, नंबर सीरीज रिलेटेड होते हैं, लेटर सीरीज होती है, कोड्स, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी अभी काफी आने शुरू हो गए हैं, जैसे फ्रैक्शन पे बेस्ड हो गए, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशो प्रपोर्शन। ये रेशो प्रपोर्शन परसेंटेज और एवरेज ये यूनिट 5 में भी काम आएंगे, यूनिट 7 में भी। देन प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 5 में। दीज ऑल आर कवर्ड इन आवर बुक। देन लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म्स क्या होंगी, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, देन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंडियन लॉजिक इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है, प्रमाणास, देन अनुमान, हेतु भाषा, ये सारी चीजें इस 6 चैप्टर में से आएंगी। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन में देखा कि एक पैसेज का क्वेश्चन होंगे, वैसे ही डेटा इंटरप्रिटेशन इज मैथ्स का कॉम्प्रिहेंशन। एक डेटा टेबल गिवन होगा या ग्राफ गिवन होगा और साथ में इसके क्वेश्चंस होंगे, आपने सॉल्व करना है। सो ये जो है चैप्टर 5, 6, 7, these are my favorite. I don't know about you. How many of you like these chapters? Chapter 5, 6, 7. Is there anyone who likes these chapters? Please interact with ma'am. All the student request to please interact with ma'am. Yes, ma'am. You can also raise hands if you don't want to speak. नेक्स्ट इज आईसीटी। आईसीटी से जो क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर के बेसिक जो जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ब्राउजर कौन से हैं, देन इसमें होता है सर्च इंजन। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर एंड सर्च इंजन? सर्च इंजन की कोई एग्जांपल दोगे आप? मैम जैसे कि गूगल सर्च इंजन है। Okay. So anyone, an example of a browser? क्रोम ब्राउजर। मैम क्रोम Yes, Google Chrome. Chrome. Web browser. Ma'am, Chrome, Safari, Mozilla. Mozilla Firefox। Yes, Mozilla Firefox. HTTP Okay. So there is a no. HTTP is not a browser or a search engine. There is one by Microsoft. It is Edge. So Edge जो है वो search engine है या browser है?
Microsoft Edge. Search Is it engine. a search engine or a Search engine. browser? It is search engine. Microsoft Edge is a browser, web browser. और सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो उसमें कौन सा होता है? जैसे गूगल का तो गूगल ही आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज इट इज अ वेब ब्राउजर, और बिंग जो है BING इट इज अ सर्च इंजन। ठीक कहा मैंने या उल्टा बोला? I feel like people are sleeping here. Okay, ma'am. So what I said, is it correct or मैंने उल्टा बोल दिया? Bing नहीं is मैम, a करेक्ट search है। engine और web browser. Bing is a search engine and Edge is a web browser. तो ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ईमेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि ईमेल जब हम करते हैं तो उसमें एक होता है टू का फील्ड होता है, एक होता है फ्रॉम। टू है जिसको भेज रहे हैं, फ्रॉम होगा जिसकी तरफ से है। देन उसमें साथ में ही अगर आप देखोगे साइड पे एक छोटा सा एरो होता है, उसमें CC एंड BCC होता है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है हायर एजुकेशन के रिलेटेड, ICT एंड गवर्नेंस, इन सब चीजें के बारे में क्वेश्चन होंगे। देन नेक्स्ट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रही, मीटिंग्स हुई, कन्वेंशन हुई, उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, फिर क्या हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स हैं, उनके बारे में, उनको क्या से ठीक कि जब कोई डिजास्टर है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस। देन हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चंस होते हैं, जो एंशिएंट इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में कैसे हायर एजुकेशन थी, कैसे इवॉल्व हुई, कौन कौन सी कमेटीज आई, कौन सी कमेटी का कौन सा चेयरमैन था, क्या ईयर था, ये सारे क्वेश्चंस इस 10th चैप्टर में से आएंगे। तो ये था पूरा सिलेबस। अब जब आप उस पूरे सिलेबस को एक बार समझ लोगे, देन उसके बाद पेपर 1 के लिए आपने क्या करना है, यू नीड टू सेट अ टारगेट स्कोर। यू नीड टू सेट अ टारगेट स्कोर फॉर पेपर 2 आल्सो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है और कैटेगरी, आप पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट को देखो, उसमें देखो कि क्या कट ऑफ थी, उस हिसाब से फिर आप अपना एक टारगेट लेके चलोगे दोनों पेपर्स का कंबाइन। पेपर 1 के लिए मिनिमम टारगेट अपना आप 80+ लेके चलना। फिर उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो एरियाज हैं, जैसे हमने पेपर 1 के 10 यूनिट्स देखे, तो 10 यूनिट्स में आपके कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, आप वो एक लिस्ट बना सकते हो। कभी भी किसी और की स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बेसिस पे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे। अगर आप जो हमारी बुक है उसको लोगे, आप देख सकते हो उसमें आपको 2004 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर जहाँ खत्म हुआ उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो पहले क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उससे अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है कि पहले आप चैप्टर को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करो, उसके बाद आप चैप्टर को स्टडी करो। आप अगर ऐसे करोगे ना तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उनको जब पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे फिर उनको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे अभी रीड, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, उसके बाद चैप्टर को पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने पहले देखे थे अभी उनको सॉल्व करो, फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। इफ इट इज बैड यू नीड टू रीड द चैप्टर, देन गो बैक टू दिस स्टेप, रीड द चैप्टर अगेन, देन अगेन सॉल्व द क्वेश्चंस। So if your performance is excellent, then you can move on to next chapter. और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगर पढ़ के एक बार ही इसको छोड़ दोगे, 2 महीने बाद पेपर में वो याद नहीं आएगा। तो रिवाइज करना हर मंथ के एंड पे, हर वीक के एंड पे, हर मंथ के एंड पे
जो भी आपने जैसे वीकली रिवीजन करो जो भी पूरा वीक कवर किया, और मंथ के एंड में रिवाइज करो जो भी पूरे मंथ में किया था। तो अगर ऐसे करोगे फिर ही आपको पेपर में चीजें याद आएंगी। नहीं तो पता क्या होगा कि पेपर के टाइम में जैसे कॉमनली होता है, हम पेपर करने बैठे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा तो था पर इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू नीड टू स्टे फोकस्ड। टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया है और भी बड़ा कुछ है। तो आपने हर चीज को एग्जाम के रिलेटेड कैसे यूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एग्जाम रिलेटेड जो है वीडियोस भी है, आप उनके ऊपर टाइम स्पेंड ज्यादा करना रेदर देन बाकी चीजों पे। देन यू नीड टू प्रैक्टिस शॉर्टकट ट्रिक्स। ये देख ली, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यहाँ पे जैसे स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता था कि सारे स्टेप्स ठीक होने चाहिए, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो यू नीड टू जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन हो सारे स्टेप करने। तो अभी भी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूरे स्टेप सॉल्व करके देखेंगे। नोबडी इज गोइंग टू चेक आपने कौन सा स्टेप स्किप किया। तो शॉर्टकट ट्रिक्स जो ट्रिक्स हैं उनके साथ टेस्ट अपनी प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आप पेपर में भी उनको यूज कर सको और टाइम बचा सको। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगी तो फिर क्या होना है कि आपने कहना पेपर तो आसान था, आता भी था, बट टाइम कम था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। आपको बुक के साथ भी फ्री मिलते हैं, वैसे भी मेरी वेबसाइट है एग्जामिनर, तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड प्रैक्टिस ज्यादा होगी। इन मॉक टेस्ट को करो, इनसे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी। एंड देन लास्ट इज यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप को अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करोगे। Then next is tips and tricks to solve reasoning questions easily. Any query, जो अब तक हमने बात की उसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं। So next is and first trick is कि कोडिंग डिकोडिंग में ना जरूरत पड़ती है अल्फाबेट्स की डायरेक्ट एंड रिवर्स ऑर्डर पोजीशंस की। तो वो मैंने कॉमनली देखा है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि चाहे एक क्वेश्चन हो उस पर टाइम वो ऐसे वेस्ट करते हैं, वो पहले ए टू जेड पूरा लिखेंगे फिर उन सारे अल्फाबेट्स की नंबरिंग करेंगे। तो उससे उसमें वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे दो ट्रिक्स हैं। फर्स्ट इज कि अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट्स की, जैसे हमने अगर ए से लिखना स्टार्ट किया तो ए की पोजीशन 1 है, बी की 2 हो गई, सी की 3 हो गई। तो ऐसे करते करते हम जब जेड तक जाएंगे तो पोजीशन आ जाएगी 26। तो उसको हम शॉर्टकट से कैसे याद कर सकते हैं, इससे EJOTY और इनके नंबर्स देखिए आप, पोजीशंस इनकी 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये इनकी पोजीशंस हैं अल्फाबेट्स की। तो अगर आप पूरा ए टू जेड लिखने से बेटर है इजोटी लिख दो और इनकी नंबर्स पोजीशंस लिख दो। अभी आप क्या कर सकते हो, सपोज अगर आपने देखना था कि के की पोजीशन क्या होगी, के से पहले क्या आता है, इट इज जे। जे की पोजीशन 10 है तो के की पोजीशन हो जाएगी 11। ऐसे ही अगर आपने देखना है एस की पोजीशन क्या होगी, तो एस के बाद क्या आता है, टी, और टी की पोजीशन है 20, तो एस की हो गई 19। ऐसे ही आप बाकी अल्फाबेट्स की भी देख सकते हो। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी, डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन ऑफ जी? प्लीज सेंड योर आंसर्स इन चैट बॉक्स using this shortcut trick. What is the position of G? 7. You can comment, you can write your answer in chat box. The comment is visible, ma'am. Chat box की ऑप्शन नहीं आ रही है? No, Now ma'am. you can comment in chat box. Okay.
ओके, तो पोजीशन ऑफ जी इज 7। वो आपने कैसे देखा? ई की पोजीशन 5 है, ई एफ जी, तो ई की पोजीशन 5 है तो जी की हो गई 7। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखना चाहो एम की पोजीशन क्या होगी तो 13. यस, एम्स पोजीशन इज 13। नाउ इट लुक्स लाइक दैट एवरीवन इज लिसनिंग। पहले तो ऐसे ही लग रहा था जैसे सब सो रहे हैं, सारे कमेंट्स ऑफ किए थे। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इनकी रिवर्स ऑर्डर पोजीशन की। डायरेक्ट ऑर्डर के लिए तो आप ये यूज कर लोगे, इसको आप नोट डाउन कर लो, EJOTY, और इनकी पोजीशन ये है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये 3 का टेबल पे है, ये 5 का टेबल था। नेक्स्ट इज, अभी अगर आप देखो एक चीज, जैसे ए की पोजीशन जो है डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन इट इज 1, और रिवर्स ऑर्डर पोजीशन क्या होती है? रिवर्स ऑर्डर इज कि अगर आप Z से स्टार्ट करते हो तो आप जैसे 1A से स्टार्ट किया तो फिर Z तक पहुंचते पहुंचते पोजीशन आ गई थी 26। तो अगर हम Z से स्टार्ट करें, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करें, तो Z की पोजीशन आ जाएगी 1, और ऐसे ही अगर हम पीछे चलते आए तो A की पोजीशन हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर 26। Z से स्टार्ट करके A तक आना है, दैट इज रिवर्स ऑर्डर पोजीशन। तो अगर आप एक चीज देखो, A की दोनों पोजीशंस को अगर आप ऐड करोगे तो सम विल बी 27। आप किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन देख सकते हो, दोनों पोजीशंस को ऐड करोगे तो सम हमेशा 27। प्लीज टर्न म्यूट योर माइक। मैम आपने कंटिन्यू, मैम आप कंटिन्यू कीजिए मैम। यस, यस, तो अगर आप इन पोजीशंस को ऐड करेंगे तो सम विल ऑलवेज बी 27। कोई भी अल्फाबेट आप देख सकते हो, जैसे हमने अभी देखा था जी की पोजीशन को, जी की पोजीशन जैसे डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन 7 थी, तो इसकी जो रिवर्स ऑर्डर पोजीशन आप देखोगे ना, इट विल बी 20। तो अब कोई भी अल्फाबेट की दोनों पोजीशंस को ऐड करोगे तो सम विल ऑलवेज बी 27। तो रिवर्स ऑर्डर पोजीशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी अल्फाबेट की, सिंपली आप 27 में से डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन को माइनस कर देना। 27 माइनस 7 इज 20, 27 minus 1 is 26, 27 minus 26 is 1। तो रिवर्स ऑर्डर पोजीशन के लिए आप हमेशा ये ट्रिक को यूज कर सकते हो। अभी जैसे आपने बताया था कि M की पोजीशन जो है डायरेक्ट ऑर्डर इट इज 13, तो M की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन क्या होगी? तो M की डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन इज 13, तो रिवर्स ऑर्डर पोजीशन इज 14। नेक्स्ट जो है अभी हम बात करेंगे, इट इज द क्वेश्चंस, सम ट्रिक्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सीरीज। अभी यहाँ पे ना पॉसिबल नहीं है कि अगर हम कोई एक टॉपिक चूज कर लेते तो उस पे अच्छे से डिस्कशन हो सकती थी, पर अभी हमने एक ओवरऑल रखा है, तो इसलिए फिर हम थोड़े थोड़े ट्रिक्स आपको सारे टॉपिक्स की बता दूंगी। जैसे नंबर सीरीज के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ट्रिक्स क्या हो सकते हैं? कॉमन जो सीरीज होती है वो ये होती है नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की। आई होप कि आपको इन सब का डिफरेंस पता होगा। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में 0 भी आता है। इवन नंबर्स जो 2 के साथ डिविजिबल हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर्स आ गए जो सिर्फ जिनके मल्टीपल्स कोई नहीं है, सिर्फ 1 एंड इनका अपना टेबल। तो बेसिक कॉमन ये सीरीज है। इनके अलावा अगर कोई नई सीरीज बन रही है दैट इज बेस्ड ऑन एडिशन। अगर आप किसी भी सीरीज में देखोगे एक स्लो इंक्रीज है, जैसे यहाँ पे हमने बात की, इफ द सीरीज आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड द इंक्रीज इज स्लो, अगर स्लोली इंक्रीज हो रही है तो इट इज केस ऑफ एडिशन। उसमें कोई ना कोई आपने फिर देखना है, स्लो इंक्रीज है तो कोई ना कोई नंबर ऐड किया होगा, जैसे यहाँ पे है प्रीवियस नंबर प्लस 5। ऐसे ही यहाँ पे है जो सेम नंबर ऐड हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सीरीज जो है आप इस तरह देख सकते हो। अगर स्लो इंक्रीज है तो इट इज अ केस ऑफ एडिशन, अगर स्लो डिक्रीज हो रहा है तो इट इज अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम सेम नंबर भी हो सकता है या चेंज भी हो सकता है, ऐसे एक सीरीज भी हो सकती है।
ऐसे ही अगर इंक्रीज फास्ट है तो इट इज अ केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुए और कुछ ही नंबर्स के बाद हम 64 तक पहुंच गए, या यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 25 से स्टार्ट हुए और जो है नेक्स्ट कुछ नंबर्स के बाद जो है नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ऐसे केसेस में इट इज अ केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही अगर फास्ट डिक्रीज होगा तो इट इज अ केस ऑफ डिवीजन। देन आपको 1 to 20 जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप सीरीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सको। और एक कई बार क्या होता है सीरीज में, नंबर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑल्टरनेटिवली, तो उसमें क्या होगा, दो सीरीज मिक्स हुई होती है। नेक्स्ट इज अबाउट ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन के लिए एक तो हम आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी मेथड बताएंगे, हम पहले उसकी बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन सुरेखा सेड ही इज द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर्स सन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो इन क्वेश्चंस में इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको रिलेशंस क्लियर नहीं होते हैं। तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको ये चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ऐसा सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे उनके लिए, तो पहले तो हम ये चेंज करेंगे। एक तो इसको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ही है तो ही की जगह पे कौन बोल रहा है, पॉइंट सुरेखा बोल रही है अबाउट अ मैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैन इज, इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, मैन इज ब्रदर ऑफ मदर ऑफ, तो यहाँ पे क्या था, माई, तो माई कौन है, सुरेखा, सुरेखा बात कर रही थी, तो फिर माई की जगह पे आ गया सुरेखा, और उसके फिर आगे अपने बाकी पूरा लिख दिया। अब इस सेंटेंस को हमने ब्रेक करना है इस पे, इसके टू पार्ट्स कर लिए। एक तो ये आ गया, पोर्शन 1 आ गया मैन, और सेकंड पोर्शन जो आ गया वो ये आ गया बाकी जो रिलेशंस गिवन है। अब इनको 1 by 1 सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे लास्ट रिलेशन जो लिखा हुआ है, दैट इज सुरेखा फादर्स सन, तो सुरेखा के फादर का सन, सुरेखा का कौन होगा, वो सुरेखा का भाई होगा, तो इट इज सुरेखा ब्रदर। देन अब हमने क्या करना है, सुरेखा फादर्स सन को चेंज कट कर दिया, वहां पे क्या आ गया, सुरेखा ब्रदर। अब नेक्स्ट रिलेशन इज मदर ऑफ सुरेखा ब्रदर, मदर ऑफ सुरेखा ब्रदर कौन होगी, वो सुरेखा की भी मदर होगी, सो इट इज सुरेखा मदर। देन नेक्स्ट आ जाएगा, फिर इसको भी फिर हमने कट कर दिया, नेक्स्ट इज ब्रदर ऑफ सुरेखा मदर, तो सुरेखा की मदर का जो ब्रदर होगा इट विल बी सुरेखा मेटरनल अंकल, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जब सारे रिलेशंस को सॉल्व कर लिया तो इसको कंबाइन कर देंगे, तो वो बन जाएगा मैन इज सुरेखा मेटरनल अंकल। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बिना पेन पेपर के भी, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे चार्ट भी ड्रॉ कर सकते थे। इसमें आ गया सुरेखा, सुरेखा के फादर, फिर फादर का सन, सन की मदर, मदर का ब्रदर, ऐसे करके भी इसको ड्रॉ कर सकते थे। अब हम बात करेंगे कि जब चार्ट को ड्रॉ करना है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसको स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इज ma'am. इट इजी और नॉट? Easy. Yeah, easy. तो आई थिंक अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बस आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना आना चाहिए। चार्ट ड्रॉ करने से बेटर है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है इनको चार्ट ड्रॉ किए बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पजल फॉर्म में गिवन होता है, वहां पे चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बुक में मिल जाएंगी। अभी हम बात करते हैं, अगर चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको फिर कैसे इस तरह से ड्रॉ करें कि उसमें आंसर गलत ना हो। तो उसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है सेम कंटेंट होता है, उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको इस एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहेगा और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, कि और उसमें क्या करना है, आपने मेल एंड फीमेल जो रिलेशन है उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है पहले से ही। जब आपने चार्ट ड्रॉ करना है तो उनके साथ साथ, जैसे यहाँ पे हमने किया सुरेखा, और फिर बाकी के जो रिलेशन है उनके साथ, जैसे ये देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन बना रहे थे, तो इससे क्या होगा, आपको कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन सिंपल ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन इस पे बेस्ड ये हो सकता है कि जो भी ये सारी बात की है
फैमिली में कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं। तो ये चीजें काउंट करने के लिए आपने मेल और फीमेल बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है और कोई डिफरेंशिएटिंग मार्क बना लो, जैसे प्लस और माइनस या ये सर्कल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरो जो आपने बनाना है, एरो हमेशा बनाना है रिलेशंस में और एरो पॉइंट सही कर रहे। जैसे यहाँ पे है ए इज मदर ऑफ बी, तो एरो शुड बी टुवर्ड्स ए बिकॉज ए इज मदर, ए जो है वो मदर है। और अगर आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो ये गलत हो। अगर जैसे रिलेशन है ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो एरो दोनों की तरफ पॉइंट करो और साथ में माइनस का साइन दोनों के साथ जैसे यहाँ पे बना देना। ऐसे अगर आप चार्ट ड्रॉ करोगे तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। आंसर करते टाइम बस ध्यान रखना है रिलेशन किसका पूछा हुआ है। यहाँ पे अगर होता हाउ इज रेखा रिलेटेड टू मैन, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट लास्ट में ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था, तो आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे होता हाउ इज सुरेखा रिलेटेड टू मैन, तो फिर आंसर होना था नीस, पर यहाँ पे है हाउ इज मैन रिलेटेड टू सुरेखा, तो फिर आएगा मैटरनल अंकल। नेक्स्ट में हम बात करेंगे डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आई थिंक चैट में किसी ने कुछ डायरेक्शंस का लिखा भी था। ओके, डायरेक्शन के क्वेश्चंस के रिलेटेड भी पूछा था सुमिता ने। तो डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक चीज तो है जो कॉमन है, दैट इज पाइथागोरस यूज होती है। जो भी आपको कंटेंट गिवन है, कोई भी जैसे यहाँ से गया इधर गया, तो अब आपने स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन को ज्वाइन करना है। अगर इनका डिस्टेंस पूछा हुआ है तो इनको आपने ऐसे डायगोनली ज्वाइन कर लेना है। अभी यहाँ पे ट्राइंगल तो बन नहीं रही है, तो पाइथागोरस कैसे यूज करोगे, उसके लिए इमेजिनरी ट्राइंगल ऐसे बना लेना। कोई और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और जो ये नीचे वाला डिस्टेंस है ये इसके इक्वल होगा। तो ऐसे ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा के इसको यूज कर सकते हो। और एक चीज इसमें होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पे आप देखिए, जैसे सपोज अगर स्टार्ट किया ई पॉइंट से, ई पॉइंट से एफ पॉइंट पर गए, फिर क्लॉकवाइज टर्न ली, क्लॉकवाइज टर्न इधर आएगी, इट इज राइट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, और इसको ड्रॉ करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे इट इज मेंशन्ड हियर क्लॉकवाइज टर्न इज राइट टर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न इज लेफ्ट टर्न। और एक चीज और आप ध्यान रखना कि जब आपने इसे ड्रॉ करना है तो आपने जैसे यहाँ से पहले इधर गए और फिर आगे गिवन है राइट हैंड को टर्न किया, अब इधर चले गए और यहाँ से जब टर्न लेनी है, सपोज इट इज लेफ्ट, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने पेज को रोटेट कर लेना है। इसको जब आप रोटेट करोगे और उसके बाद फिर आपके जो आपकी लेफ्ट एंड राइट है वहां पे आ जाएगा, तो आपने इसको रोटेट कर लेना है अपने पेज को, फिर करना है। और एक ये कुछ शेडो वाले क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, उनके रिलेटेड भी ट्रिक्स बुक में गिवन है। नेक्स्ट जो है इट इज कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, वो भी कवर्ड है। सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस भी, सिलॉजिज्म के लिए आपको बुक में एक ऐसा मेथड गिवन है जो जिसके साथ ना आप पेन एंड पेपर के बिना भी इनको कवर कर सकते हो। सिलॉजिज्म पे मेरा एक कोर्स अन अकेडमी पे भी अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जाके कभी भी देख सकते हो। तो वो 2018 में अपलोड 17 में अपलोड किया था। उसके बाद आई लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बट आई हैव नॉट रिमूव्ड माय कोर्सेज फ्रॉम देयर। कोर्सेज वहां पे अभी भी अवेलेबल है, आप जब भी चाहो आप देख सकते हो। आप एक काम करना, एग्जामिनर पे विजिट करना, आई विल शेयर द लिंक इन कमेंट बॉक्स। तो वहां पे आप देख सकते हो मेरे कोर्सेज की, आपको वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे लिंक, और उनको आप ओपन करके कभी भी पढ़ सकते हो। और उसमें एक ऐसा मेथड कवर्ड है कि आप पेन एंड पेपर के बिना भी सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को कर सकते हो। सेम मेथड इज गिवन इन बुक आल्सो। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स होते हैं, ऐसे टेबल्स में आपने ये ध्यान रखना है, जो इस तरफ है दीज आर द रोज, और जो नीचे हैं दीज आर द कॉलम्स। वर्टिकल वन आर द कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल आर द रोज। बार ग्राफ्स होते हैं ऐसे, देन हिस्टोग्राम होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, डोनट चार्ट्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो सकती है, जहाँ फिर ऐसे लाइन ग्राफ होते हैं। तो लाइन ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन इधर ड्रॉ किया, जब आपने डेटा को मैच करना है एक इधर, ऐसे करके आपने डेटा को देख लेना है ये पॉइंट जो है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक चीज है, उसमें पूरी पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट प्लेस डिजिट्स के साथ ही कैलकुलेशंस को कर सकते हो। जैसे सपोज अभी आपने ये 2 नंबर्स को ऐड करना है और आंसर आपका इन 2 नंबर्स को ऐड करके आना था, तो उनको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो सारे ही ऑप्शंस का अलग अलग है। दैट मीन्स कि अगर आपने सिर्फ लास्ट वाला नंबर भी देख लिया कौन सा आएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट नंबर विल बी 7 + 7 14, दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत कई बारी नहीं होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, ट्रिक लगा दिया, टाइम बच गया, नहीं तो आप उसको पूरा सॉल्व करते जाओगे, टाइम नहीं होगा। देन विजुअल अप्रोक्सीमेशन, जैसे अभी जो है आप देख सकते हो, अगर सपोज आपने देखना था कि मैक्सिमम ग्रोथ कब हुआ, सेल्स है ये डिफरेंट ईयर्स की, तो चेंज जो है वो हर बारी 10 का था। अभी आपने क्या करना है, अगर आपने देखना है कि ग्रोथ का, तो उसको देखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ग्रोथ के लिए फॉर्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय द वैल्यू इन द बेस ईयर, चेंज डिवाइडेड बाय द वैल्यू इन द बेस ईयर, और फिर उसको आपने ऐसे डिवाइड करके आपने देख लेना है। तो अभी आप मैक्सिमम ग्रोथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब को, ये 10 डिवाइडेड बाय 110, 10 डिवाइडेड बाय 120, 10 डिवाइडेड बाय 130, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपके पास आंसर आएगा। तो उसको सॉल्व करने से बेटर है, आपके पास एक ट्रिक है। अभी आप देखो इन सबका न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी। हमने देखा था मैक्सिमम ग्रोथ, दैट मीन्स इट विल बी हाईएस्ट व्हेन द डिनोमिनेटर वाज स्मॉलेस्ट, डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट हियर, 10 डिवाइडेड बाय 110, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। दैट मीन्स ग्रोथ रेट वाज हाईएस्ट इन 2010। ग्रोथ रेट क्या था ये नहीं पूछा हुआ, बस यही पूछा था कि मैक्सिमम कहाँ है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विजुअल अप्रोक्सीमेशन के साथ भी इसको कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए हम क्या करते थे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड किया या 100 को 8 से डिवाइड किया। तो इन सब चीजों को करने से बेटर क्या है कि हमने सिंपल ये देखा, किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका 20% आ जाएगा। अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25% आ जाएगा। और सिंपल देखें, अगर सपोज आपने 150 का 25% निकालना है, तो 150 का 25% निकालने के लिए आपने स्कूल में जो सीखा वो क्या था, 150 इंटू 25 upon 100. Sorry for the poor handwriting. It is actually I'm writing on paper. तो 150 जो स्कूल में मेथड सीखा था, दैट इज 150 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना था, पहले 15 को और 25 को मल्टीप्लाई करना था और फिर निकालना था। तो उससे अच्छा सिंपल मेथड क्या है, सिंपली डिवाइड 150 बाय 4। इसको भी और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पहले 150 का हाफ किया 75, अब 75 का हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 25%। किसी भी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 33% आ जाएगा। किसी नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 2 से डिवाइड किया 75 आया, तो इट इज 50% ऑफ 150। 8 से डिवाइड, अगर आपने 12% निकालना है किसी भी नंबर का तो उसको 8 से डिवाइड कर दो। और सपोज आपने 60% निकालना, तो 60% के लिए देयर आर टू मेथड्स, यू कैन simply add 50% and 10%, or you can first divide the number by 5 then multiply it by 3। और सपोज आपने 150 का ही देखना था 60%, तो 150 का 50% इज 75 एंड 150 का 10% विल बी 15। तो अब अगर आप 15 एंड 75 को ऐड करोगे तो आपके पास 150 का 60% आ जाएगा। कॉमन परसेंटेजेस को यूज कैसे कर रहे हैं, जो आपको अभी मैंने बताया, जैसे सपोज दिस इज द नंबर 5652, तो इसका आपने अगर 75% निकालना है क्या होगा, तो 75% के लिए अभी आपने स्कूल वाला मेथड यूज करते तो क्या करना था, 5652 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर 100 से डिवाइड करते थे। तो उससे बेटर क्या है कि आपने पहले इसका 50% देखा, 50% देखने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया
2 से डिवाइड किया, नंबर आ गया 2826, इसका हाफ कर दिया, फिर उस हाफ का भी हाफ कर दिया 1413, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 75% मिल जाएगा। देन ऐसे ही आप देख सकते हो, रिवर्स भी देख सकते हो ऐसे ही, जैसे हमने देखना था 7% क्या होगा इस नंबर का, तो पहले 50% देखने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया, देन 5% के लिए 0 हटा दी, तो यहाँ से एक डेसिमल आ गया, फिर उसका 2% देख सकते हैं, इसको डबल करके, तो उनको ऐड करके 7% आ जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज एवरेज के लिए आप कोई ट्रिक, तो एवरेज के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि नंबर्स में से जो है कॉमन नंबर क्या निकल सकता है। सपोज अगर आप सारे नंबर्स जो है वो 7000 प्लस है, तो 7000 को हटा दो, बाकी के जो बच गया उसको ऐड कर दो। 5000 प्लस है तो 5000 हटा दो, बाकी को ऐड किया, बाकी जो नंबर बच गए उनकी एवरेज निकालो, और फिर जो यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट किया था उसको उसमें ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये सारे नंबर जो है दीज आर 5000 प्लस, तो इनमें से अगर हम 5000 निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, 125, 180, 90, 150, 75। ऐसे ही आप इन सबको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए भी आप अगर देखोगे ना, अगर एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया है ना, उसने टाइम सेविंग को ध्यान में रख के किया होता है। तो यहाँ पे आप कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो, 125 एंड 75 इज 200, 180 एंड 20 इज 200, और 50 एंड 150 इज 200, 90 एंड 110 इज 200। तो इन सबको ऐड करो और फिर आप उनकी एवरेज निकालो, जो भी आएगी उसमें 5000 ऐड कर देना। अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डू वी हैव टाइम, तो हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। Yes, ma'am, no problem. You can discuss. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं। So there are queries about binary system and hexadecimal. So binary and hexadecimal जो questions हैं, they are from ICT. तो उसमें आपने क्या करना है कि बाइनरी में जो कन्वर्जन है उसके बुक में आपको दोनों की बहुत ही अच्छे मेथड्स जो है ना वो गिवन है, टाइम सेविंग मेथड्स गिवन है। बाइनरी के लिए आपने उसको 2 के साथ जो है, जैसे हम स्कूल में एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, तो 2 के साथ डिवाइड करते जाना है, और जो भी रिमाइंडर होगा उसको अगर 1 है तो 1 लिख देना साइड पे, अगर 0 है तो 0 लिख देना साइड पे, और फिर उसको नीचे से ऊपर तक काउंट कर लेना। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी हो जाती है कन्वर्जन। और सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चंस हैं जैसे उसमें अगर आपने पैटर्न ठीक बना लिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए, तो आपके आंसर सारे करेक्ट होंगे। उसमें आपने ध्यान रखना होता है एक तो लेफ्ट राइट का, तो उसके लिए क्या करना है, जितनी भी पोजीशन है, जैसे सर्कल ड्रॉ किया, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ये एक सर्कल है, तो सर्कल के अगर आपको 4 पोजीशंस गिवन है, तो ऐसे आपने 4 पोजीशंस मार्क कर ली। अब इन सबका अगर तो फेस बताया हुआ है कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स, लाइक दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, तो फिर सबका फेस इधर होगा सेंटर की तरफ। तो फेस अगर इसका फेस अगर इधर है, तो इसका फिर आपने जैसे ये पर्सन है, अभी आपके जो आपका भी फेस इधर है, इसका भी इधर है, तो जो आपका लेफ्ट राइट होगा वही इसका लेफ्ट राइट होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ऐसे ही इसका लेफ्ट और इसका ये राइट हो गया, फिर इसका लेफ्ट इधर आएगा, इसका राइट इधर आएगा। आपने ऐसे सबका लेफ्ट एंड राइट पहले लिखना है, पहले टेबल को जो भी आपको गिवन है पैटर्न उसको ड्रॉ किया, उसके नंबर ऑफ सीट्स को मार्क किया, फिर उनके लेफ्ट राइट को मार्क किया, और फिर उनकी पोजीशन लिखनी है। जैसे कि अगर इमीडिएट राइट बताया हुआ है इसकी, अगर सपोज इस पर्सन की आपने इमीडिएट राइट पे, सपोज यहाँ पे ए है, तो ए की इमीडिएट राइट पे है बी, ए की इमीडिएट राइट इधर होगी, तो यहाँ पे बी है। अब बी के अब सपोज इट इज गिवन बी के राइट सेकंड टू द राइट, बी की राइट साइड पे सेकंड पोजीशन, इसकी राइट इधर आएगी, तो राइट साइड पे फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई, तो यहाँ पे है सपोज सी। ऐसे आपने इसको देखना है ध्यान से कि क्या गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है जैसे जैसे उसको पढ़ोगे उसको साथ साथ में ही आपने मार्क करते जाना है, और उनको फिर आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। कोई इवेंट हुआ था, स्पोर्ट्स इवेंट, उसमें 4 कंट्रीज के मेल एंड फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, ईयर वाइज डेटा गिवन है।
चारों कंट्रीज का मेल एंड फीमेल का डिफरेंट ईयर्स का डेटा गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एथलीट्स इन 2017? 17 में फीमेल एथलीट्स कितने थे? तो हम देखेंगे 17 ईयर को यहाँ से देखा, अब इसमें फीमेल एथलीट्स कितने थे। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमने निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एथलीट्स। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल एथलीट्स इन 2017। तो एक तो हमने इन सब का टोटल करना है जो ये गिवन है, और दूसरा सिर्फ फीमेल एथलीट्स सारे कंट्रीज के उनका टोटल करना है। इन दोनों टोटल को फिर हमने डिवाइड कर देना, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स, और फिर इनको डिवाइड कर दिया और परसेंटेज निकाल। Next is which country has the minimum number of male athletes? 2016 से लेके 2020 तक जो है मेल एथलीट्स कितने थे। तो अभी इसको भी हमने ऐसे ही देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सारे कंट्रीज के 2016 से लेके 20 तक के जो भी मेल एथलीट्स थे उनको काउंट किया, और फिर उनमें से देख लेना है क्वेश्चन था विच कंट्री हैज मिनिमम नंबर, तो सबका टोटल करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मिनिमम कहाँ पे था, दैट इज द कंट्री सी। Then it is which country has the best total male female ratio from 2016 to 21? तो इसके लिए सारे ईयर्स का टोटल करेंगे, ए में कितने थे, बी में कितने थे, सी में कितने, डी में, फिर इनकी रेशियो निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन that find the difference between average male athletes in 2016 and average male athletes in 2017। इन सबका टोटल करेंगे, इनकी एवरेज निकालनी है, तो दोनों का एवरेज देखा 16 के लिए भी 17 के लिए भी, और फिर उसका डिफरेंस देख लिया। Which country has the highest number of female athletes? तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में, जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी डेटा कैलकुलेट कर रहे हो उनको आप क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे जैसे ये टेबल है, टेबल के नीचे लिखते जाना, यहाँ पे जो भी आपने टोटल लिख लिया, जैसे यहाँ पे देखा कोई टोटल, इनको यहाँ पे लिख लिया, कोई इधर का था तो उसको इधर लिख लिया, बिकॉज कई बार क्या होता है सेम कैलकुलेशन बाद में दोबारा जरूरत पड़ती है। जैसे अभी ये हमने कैलकुलेट किया था इस टेबल को पिछले थर्ड क्वेश्चन में, तो उसको फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Now it is the time for your question answers. Any queries? কারো কোনো কোয়েরি থাকলে বলতে পারো, তোমরা বাংলাতেও Ma'am? প্রশ্ন করতে পারো। मैम एट फर्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करना पड़ेगा? It depends upon you, आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। और एक चीज आप देख सकते हो कि मैं इतना सजेस्ट करूंगी आपको, सिर्फ थ्योरी ना स्टार्ट करना है या सिर्फ रीजनिंग को स्टार्ट मत करना। आप थ्योरी एक चैप्टर थ्योरी का स्टार्ट करो, प्लस एक टॉपिक रीजनिंग का ले लेना, दोनों को साइमल्टेनियसली करो। और जिस टाइम पे आप एक्टिव हो तब थ्योरी पढ़ो, और जब बोर होना शुरू हो गए तो फिर आप रीजनिंग पे आ जाना, तो रीजनिंग आपको बोर नहीं होने देगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस अ टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग साथ में स्टार्ट कर ली। तो मॉर्निंग में आप एक्टिव हो, थ्योरी पढ़ो, रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करो। थैंक यू मैम। और there is a surprise for everyone, please stay tuned till the end। अभी खत्म ही होने वाला है वैसे तो कोई और क्वेरी है आपकी? मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वीक में कितने मैथ्स स्पेशली मैथ्स रीजनिंग में मैथमेटिक्स में कितने प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए कितने शीट होना चाहिए, 7 डेज में 7 या फिर उससे ज्यादा? आप बोल रहे हो कि मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी मतलब पहले तो शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए पहले शुरुआत कैसे करना चाहिए? अगर आप
जो है बुक को यूज करोगे ना, तो आपको उसमें ना बड़े सिस्टमेटिक वे में कंटेंट्स गिवन है, प्लस टॉपिक्स जो है वो एक बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच में गिवन है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सॉल्व करना इजी लगेगा। आपने एक टॉपिक सॉल्व समझा, उसको उसकी एक्सरसाइज करो और फिर आगे आप चलते जाओ, बड़ा इजी वे में आप उसको कवर कर पाओगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी कि आपने इतने करने ही है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप अपना टारगेट इस लेके चल सकते हो ये कि इस वीक मैंने जैसे सपोज रोज के 15 क्वेश्चंस मिनिमम करने ही है। आप उसको इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो टारगेट्स की, पहले मैं 15 कर रही थी, अब मैं 30 क्वेश्चंस के करूंगी रोज के। आप ऐसे उसको यूज कर सकते हो, बट और कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं आएगा। बस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और आप प्रैक्टिस करते रहो टॉपिक्स की। टाइम के हिसाब से देख लो, अभी आप दिसंबर में अपियर हो गए, तो अभी आप देख लो कि आपने एक बार ही सिलेबस को खत्म करके बाद में रिवाइज भी करना है। टाइम के हिसाब से देख लो। Thank you. मैम मैम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, क्या जरूरी है ये सब प्रीवियस करना? ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो आपका कितनी प्रेपरेशन अच्छी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि जो पहले क्वेश्चन आए थे उनको आपने सॉल्व कर लिया, तो जो आने वाले टाइम में आएंगे उनको भी कर पाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर को के साथ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करोगे तो आप पेपर के लिए अनप्रिपेयर्ड ही हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हर एक चैप्टर के बाद जरूरी है, फिर ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं, आपको मिक्स होगा कंटेंट। मैम चैप्टर शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखना है या उसके बाद चैप्टर शेष करने के बाद? आपने ना पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जस्ट एक बार देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स के ठीक है मैम। क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो रिसर्च में जो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने पहले देखा होगा उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको पता होगा कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन तो बहुत बार ही आया हुआ है। तो जब आपने पढ़ना है स्टेप्स ऑफ रिसर्च को, तो आप उस पर फोकस ज्यादा करोगे कि हाँ, ये टॉपिक पेपर में बार बार पूछा जा रहा था तो इसको मैं ध्यान से पढूं। ये डिफरेंस आएगा आपकी स्टडी में। और फिर जब आपने उसको पढ़ लिया टॉपिक, रिसर्च एप्टीट्यूड को खत्म किया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो आपसे सॉल्व हो रही है। अगर सॉल्व हो रही है तो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाना, जो भी आप नेक्स्ट स्टडी करना चाहते हो। अगर नहीं हो रहे होंगे तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड ही दोबारा पढ़ना चाहिए फिर एक बार से। ठीक है मैम, थैंक यू प्रीवियस ईयर सो मच। क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज और बताती हूँ। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, प्रीवियस ईयर के लिए आप और क्या कर सकते हो यूज। मेरे पास एक और है स्क्रीन, वहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। कोई और क्वेरी है? तब तक आप अपनी क्वेरीज बता दीजिए। और मैम जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म मैम लॉजिकल रीजनिंग में जो फैलासी से आपको क्वेश्चन आ रहा है मैम, उस फैलासी के लिए मैम क्या करना हाँ चाहिए? जी, लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज जो है दे आर आल्सो कवर्ड हियर। और उसके अलावा भी आप जब फैलेसीज के लिए आप पढ़ोगे ना टॉपिक को, तो उसमें से क्लियर हो जाएगा। प्लस आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व जरूर करके जाना, बुक में कवर्ड है ये टॉपिक। पेपर 1 में जो 10 यूनिट है, अगर मुझे जीआरए पाना है तो वो 10 यूनिट ही अच्छे से पढ़ना होगा, या दो एक यूनिट छोड़ दिया कोई बात नहीं, एग्जाम में कोई असर नहीं पड़ेगा? जैसे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आप जो है एग्जाम में आपके लिए 80+ का स्कोर अगर आप लेके चले,
हर जो सेक्शन है उसमें से अराउंड 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप 80 प्लस का स्कोर भी लेके चल रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आपने 80 प्लस के लिए भी आपने फिर कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट ले रहे हो, तो 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, 40 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं। अगर कोई एक टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इनमें से ना कोई स्किप करना। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपने, जैसे अभी हमने ब्लड रिलेशन की बात की, अगर आपने ब्लड रिलेशन की एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपके ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आ जाए, आप ठीक ही होगा। तो अगर आपने स्किप करना है कोई थ्योरेटिकल पोर्शन का, कोई एक टॉपिक, उसको एक चैप्टर, उसको आप स्किप कर सकते हो, उसमें से 5 क्वेश्चंस ही होंगे, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिस्क है। हाँ मैम, डाटा इंटरप्रिटेशन को बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करोगे ना, फिर नहीं मुश्किल लगे। आप डेटा इंटरप्रिटेशन को जब आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करोगे, तो आप देखोगे कि 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रैकिंग नेट एग्जाम, तो इट इज योर फोकस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। इफ यू आर फोकस्ड तो आप जरूर क्लियर करोगे। कैन आई क्रैक नेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो तो जरूर कर पाओगे, बट अगर आपने सोच ही लिया कि नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा। Is this book a good book for preparation? It covers entire syllabus. It is easy to understand. लैंग्वेज इसकी इतनी इजी है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड जो है वो नॉन इंग्लिश था, लाइक अगर हिंदी मीडियम में स्टडी किया या फिर कोई और मीडियम में, तो भी वो इंग्लिश को समझ पाएंगे, इतनी इजी है। इसमें बहुत सारे फिगर्स, इमेजेस एंड टेबल्स गिवन है, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की भी लिस्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर्ड है, ये सारे फीचर्स हैं इस बुक के बारे में। आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, फ्री लेक्चर वीडियोस हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, लेटेस्ट भी हैं, 2022 के पेपर्स भी हैं इसमें। पेपर 2 के लिए भी आप सेम स्ट्रेटेजी रखो, सिलेबस को समझो, सारा कुछ है, सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, ऑथेंटिक सोर्सेज को रेफर करो, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करो। जैसे अभी आपने पूछा था कि कौन से टॉपिक को पहले प्रिपेयर करें, थ्योरेटिकल एंड रीजनिंग टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली कवर करो। एग्जाम डिफिकल्ट होगा या इजी, प्रिपरेशन के ऊपर है। ओके मैम, डिफरेंट थैंक यू सो मच। वैल्यूज जीआरएफ। ओके मैम। आपकी सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर, आप कुछ कह रहे थे? Yes, ma'am. With your permission, I want to share something to the student in Bengali. As you know, most of the students present here from West Bengal. Okay sir. So, Sir, I just want to say one thing. I have a next meeting scheduled in 2 minutes, and if you can, if we can finish it here, आप जो you can say what you want to say, but after that I think we need to finish it here. Students, they can attempt the quiz using this link. okay, ma'am. Okay, ma'am. On behalf of our institution, we would like to express our heartfelt gratitude for your participation as the speaker in our webinar on UGC NET preparation. Your presence and insightful session have made this event truly exceptional. So, ma'am, we hope to have the privilege of hosting you again in the future and continuing our collaboration to further enhance the learning experience of UGC NET aspirants. Thank you, ma'am, so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Students, please now appear in this giveaway quiz. Then we will be selecting a winner, the one who will be scoring the highest marks, and the highest scorer will get a free exam series, and rest all of you will get a coupon code for a discount for, तो और उसको आप डिस्काउंट को यूज करके आप कोई भी एग्जाम सीरीज जो है वहां से परचेज कर सकते हो, सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी।
कूपन कोड मैं सर के साथ शेयर कर दूंगी, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे Okay, sir. Okay. आफ्टर द क्विज. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for good participation. Everyone was engaging. Thank you, sir. Sir, I have to drop now. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. My meeting is going to start. Okay, Yes, sir. yes. Thank you. We will communicate through phone. Thank you. आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर लेना, अगर किसी स्टूडेंट को क्विज से रिलेटेड कोई इशू आएगा तो आप मैसेज कर देना, और Yes, आप yes. मुझे रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना जो सेशन की है. Obviously, ma'am. Obviously. No, not an issue. Thank you. Thank you so much. Sir. Thank you everyone. Bye. আচ্ছা ম্যাম, যে কুইজের লিঙ্কটা দিয়েছি তোমরা করতে পারো। আর আমরা এখানে ঋতু, হ্যান্ডসাম এডুকেশন এবং প্রস্তুতি একাডেমি একসাথে ম্যামকে আজকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছিলাম এবং ম্যাম এসছেন। তো আমরা এই তিনটে ইনস্টিটিউশন চেষ্টা করছি খুব কম পয়সায়, মানে একটা ইনস্টিটিউশন চালাতে গেলে কিছু আনুষঙ্গিক খরচ থাকে, সেইটুকু পয়সা তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে তোমাদেরকে ভালো এডুকেশন প্রোভাইড করার। সেই জন্য যারা বিজনেস মাইন্ডসেট নিয়ে এতদিন নেট সেটের এডুকেশন সিস্টেমকে চালিয়েছেন তাদের কারো কারো অসুবিধা হচ্ছে, হয়তো তোমরা তার প্রতিচ্ছবি আজকের মেসেজে দেখতে পেয়েছো। তো আমাদের কোলাবোরেশনের একটাই উদ্দেশ্য, একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করা, যে কোলাবোরেটিভ ওয়েতে, ফ্রেন্ডশিপ ওয়েতে, ফ্রেন্ডলি ওয়েতে যদি আমরা এগোতে পারি, একে অপরকে যদি হেল্প করতে পারি, তাহলে আমরা অনেক দ্রুত অনেক তাড়াতাড়ি বেশি এগোতে পারি। তো তোমরাও একে অপরকে হেল্প করে কোলাবোরেটিভ ওয়েতে বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য নিয়ে এবং সাহায্য করে যদি নেটের জন্য প্রিপারেশন নাও, তো তোমরাও অনেক দ্রুত নেট কোয়ালিফাই করতে পারবে। সেই কোলাবোরেটিভ অ্যাটিটিউডটা তৈরি করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তো সেই জন্যই আমাদের এই কোলাবোরেশন, এই প্রচেষ্টা। তাতে কারো অসুবিধা থাকলেও থাকতে পারে, যারা বিজনেস মাইন্ডসেট নিয়ে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে শুধু টাকা কামানোর জন্য নেট সেটের কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন, তাদের তো অসুবিধাই থাকবে। তো সে থাকতেই পারে, তার প্রতিচ্ছবি আমরা আজকে মেসেজে পেয়েছি, তোমরাও দেখেছো। তো সেটা সিম্পলি ইগনোর ইট, নো প্রবলেম। তো তোমরা যদি পাশে থাকো, আমরা ম্যামকে তোমাদের দিয়ে ক্লাসও করাতে পারি মাঝে মাঝে, যে টপিকটা তোমরা ডিমান্ড করবে, তোমাদের যদি ফিডব্যাক আসে সেই রকম, যে পার্টিকুলার ইউনিটটার উপর ম্যাম যদি ক্লাস নেন, সেটাও আমরা চেষ্টা করব ম্যামের সাথে কথা বলে। তো বাকিটা তো তোমাদের উপর, তোমরা কতটা ডিমান্ড করছো, কতটা ফিডব্যাক দিচ্ছ। আর এই এখন ম্যাম যে লিঙ্কটা দিয়েছেন, এই কুইজটা তোমরা অ্যাটেন্ড করে নাও। ম্যাম কিছু তোমাদের কুপন দেবেন বললেন, আর এই কুইজে যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হবে তাদের জন্য আমরাও ইনস্টিটিউশন থেকে কিছু গিফট প্রোভাইড করবো। ম্যাম জানিয়ে দেবেন পরে কে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েছে। তো তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারো চাইলে। থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য, পেশেন্স নিয়ে, এবং ওয়েবিনারটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। ফিউচারে আমরা এরকম আরো ভালো ভালো ওয়েবিনার করতে পারি যদি তোমরা আমাদেরকে মোটিভেট করো, তোমরা যদি আমাদের পাশে থাকো, আমাদেরকে যদি হেল্প করো। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের পক্ষ থেকে। थैंक यू सर। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ।